ਪਿੰਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਹੋਸਟ ਮਿੰਟੂ ਬਰਾੜ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਕਹਾ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਦਾ ਬਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਭਜਾ ਕੇ ਥਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਜਲਦੀ ਸੌਂ ਕੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਾਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਸੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੌਕੇ ਦੇ ਆਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ, ਸੌਣਾ ਕੈਂਸਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਪੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਆਓ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰਿਆਣਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਲਿਆ, ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਚ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਮਲਿਕ ਜੀ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਰਚ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਨੌਲੇਜ, ਗਹਿਰੀ ਨੌਲੇਜ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੋਆਂ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਫ, ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਸਰ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥਾਰੇ ਦੋਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕੌਣ आ गया? हाँ, ये थोड़ी सी हरियाणवी वो भी ट्रेनिंग में कोई बोलने वाला आ जाए तो थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। तो जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि हम जिस टाउन में रहते हैं वो किटेनिंग है, जो कि पर्थ जो हमारा कैपिटल सिटी है उससे 270 किलोमीटर साउथ ईस्ट में है। और किटेनिंग अपने आप में बहुत ही बड़ा एक रिच टाउन है खेती बाड़ी के हिसाब से। यदि हम देखें तो हमारे पूरे एरिया को ग्रेट सदर्न बोलते हैं। जैसे अपने हिंदुस्तान में हरियाणा पंजाब में जैसे दोआबा है, बांगर है, खादर है, मालवा है, अलग अलग जैसे ऐसे बना है, तो यहाँ भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इसको ऐसे ही डिविजन्स में बांटा हुआ है। तो ऊपर जैसे तिलबरा है, पता नहीं आपका कैमरा कैप्चर कर पाएगा नहीं, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, और इस ऑस्ट्रेलिया को देखोगे तो ये अपने इंडिया से करीब 2.5 से 3 गुना बड़ा है, और उसका 1/3 वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पूरे इंडिया के ऑलमोस्ट बराबर साइज का है। और इसमें भी आप देख, लेकिन जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, सिर्फ 2.5 मिलियन, मतलब 25 लाख लोग ही रहते हैं जी। 25 लाख तो मेरे ख्याल से अब हिसाब में पता नहीं आपके हिसाब से सब मिला लेंगे शायद में हो जाएंगे। जहाँ से आप आए या रोहतक को, सोनीपत को, थोड़ा सा गुड़गांव मिला ले तो जी हो जाएंगे। तो और उसमें से भी 17-18 लाख तो पर्थ में ही रहते हैं। तो बाकी जो 8 लाख लोग हैं वो हमारा एरिया है या कुछ डॉटेड से सिटी है। लेकिन आप जब यहाँ देखोगे ये जो एरिया बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, इसकी पॉपुलेशन है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। लेकिन असली जो पैसा है, जो मनी है, जिसे कहते हैं ना कि वेल्थ है, वो यहीं पे है, वो यहीं से आ रही है। क्योंकि ये सब ना यहाँ पे माइनिंग है। अपने जो हम लोहे की बात करते हैं, हम कॉपर की जो भी एक मतलब आप माइन की जब बात होती है वो यहाँ से इस एरिया में है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे फिर गोल्ड, सिल्वर और दूसरे हैं, बल्कि मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। ये जैसे ये रॉक्स है, अब आप बिलीव नहीं करोगे, ये जैसे
गोल्ड माइन से है। तो आप देख सकते हैं इसमें मतलब चमक है गोल्ड की। और ऐसे ही जैसे इसमें गोल्ड है, हाँ जी, ये सिल्वर है, इसमें टिन भी है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सोना है, चांदी है, जितने मिनरल है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अगर एक गोल्ड माइन तो हमारे टाउन से बिल्कुल 20 किलोमीटर पे ही है। कलबुर्गी है जो मेन जो माइन है वो यहाँ पे है, जो कि सुपर पिट के नाम से जानते हैं, जो कि स्पेस से नजर आती है। जी, इज वन ऑफ द बिगेस्ट गोल्ड माइन इन द वर्ल्ड। ओके। तो ये हमारी मेन इंडस्ट्री है। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ स्टेटिस्टिकली कि 50% जो वेल्थ है ऑस्ट्रेलिया का वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से आता है। पहले एग्रीकल्चर, पहले माइनिंग है, फिर एग्रीकल्चर है। तो हमारी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर है, जो कि ऑलमोस्ट 30% है। और एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल पे है। शायद इतने बड़े लार्ज स्केल पे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने दुनिया देखी है। कंपेरेबली अमेरिका हो सकता है, कनाडा हो सकता है, लेकिन जब हम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो हमारी जो एग्रीकल्चर है वो उनसे भी ज्यादा एडवांस और बड़ी है। यदि हम स्केल की बात करें, प्रोडक्शन कम हो सकता है, उसके कारण बताऊंगा थोड़ा कम क्यों है, लेकिन जब एक स्केल की बात आती है तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से बड़े स्केल पे एग्रीकल्चर लेवल पे कोई भी बड़ा मतलब आप ये कह सकते हैं एरिया नहीं है। हाँ, सो मैं इतने साढ़े दर्शकों ਨੂੰ थोड़ी नाल दी नाल अपडेट। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी एक इंट्रोडक्शन दी है एग्रीकल्चर। हाँ जी, और ऑस्ट्रेलिया की खास करके वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी बड़ा विस्तार से अब मैं एक्चुअली मैं यहाँ आना चाहता था। उसका रीजन ये है कि यहाँ इतने बड़े लार्ज स्केल पर मेरा एक विजन था कि मैं उस इंडस्ट्री का एक पार्ट बनूं। अब हिंदुस्तान में पैदा हुआ, खानपुर मेरा गांव है, गोहाना के पास है। मैं वही उसी पे आना चाहता। अच्छा, चलो आप उसी पे आना चाहता था, क्योंकि मैं पहले अपने दर्शकों ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜੀ, मैं इस शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਟੱਚ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਓਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਸਟ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਆੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਰੇਰ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜੰਮ ਪਾਲੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਆ, ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜੀ 'ਚ कित्थों इसे ऑस्ट्रेलिया आने तक ले आओ। हाँ, बिल्कुल। मैं जो है किसान परिवार में पैदा हुआ, खानपुर कला गांव है गोहाना के पास। अब हमारे गांव में इंडिया की सबसे बड़ी वुमेन औरतों की जो यूनिवर्सिटी है, मलकपुर सिंह महिला विश्वविद्यालय, वो हमारे गांव में है, गोहाना में खानपुर में। तो गोहाना तो हमारी तहसील है, बड़ा है, लेकिन मेन जो गांव हो खानपुर कला है जी। तो पहले वो गुरुकुल होता था, अब वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई है, उसमें पीजीआई भी है, मेडिकल कॉलेज भी है। तो इट्स अ बिग थिंग, कहते हैं ना तो जंगल में मंगल, यदि आपको देखना है तो वो वहां पे है। तो मैं जैसे बताया कि किसान परिवार में पैदा हुआ, खेती से लगाव था, तो मैंने सोचा कि अपना जो करियर होता है वो करियर भी एग्रीकल्चर में ही बनाऊंगा। तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपने नाम सुना होगा, बड़ी फेमस है, हिसार में वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी है, तो उसका मैंने भी नाम सुना था। तो जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ 1970s में, तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दोनों का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। तो वहां पे मैंने एडमिशन लिया, वहां से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, और उसके बाद मैंने वहीं से अपनी मास्टर्स की सोल साइंस में, मिट्टी विभाग कह सकते हो, और फिर पीएचडी भी वहीं से की। और इस ड्यूरेशन में जब मैं पीएचडी कर रहा था, मुझे मौका मिला, नॉर्मन बोरलॉग जो कि नोबेल लॉरिएट हुए हैं, वो एक्चुअली हमारी यूनिवर्सिटी में आए थे। तो वो एक बहुत बड़ी एक कहते हैं ना कि इंस्पिरेशन हुए मेरे लिए। उनसे हाथ मिलाया, 1-2 मिनट बात भी हुई उनसे, तो बहुत अजीब सा लगा कि ओह माय गुडनेस, तो नोबेल प्राइज की जब बात सुनते हैं और एक नोबेल लॉरिएट आपके साथ खड़ा हुआ हो और उससे बात करो तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। मैं फील कर सकता हूँ। हाँ, तो वो एक किस्म से मैंने सोचा कि भाई चलो हम ऐसे तो नहीं बनेंगे, लेकिन कुछ कोशिश तो करें।
फिर मैंने अपनी पीएचडी भी वहीं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से की, और फिर मेरे को जर्मनी से पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के लिए मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली। तो फिर मैं जर्मनी चला गया, तो वहाँ 3 साल तक मैंने जर्मनी में रिसर्च की, यही सोल साइंस में ही। हाँ, और उसके बाद फिर मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया जर्मन से। तो 2000 में जैसे न्यू साउथ वेल्स में आप कह सकते हो, और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, वहां से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, वही सोल साइंस प्लांट न्यूट्रिशन में। और वहां पे मैं काम करता रहा, लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिल में ये था कि मुझे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आना है, क्योंकि मैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ता था, और यहाँ का जो स्केल है एग्रीकल्चर का, वो उसने काफी मेरे को इम्प्रेस किया, और मैं चाह रहा था कि मैं उस इंडस्ट्री का हिस्सा बनूं। तो मेरी कोशिश चलती रही। 2004 में जैसे यहाँ पे एक रिसर्च साइंटिस्ट की पोजीशन निकली, मैंने अप्लाई किया और मैं सेलेक्ट हो गया। तो फिर हम जो ट्रेनिंग जो हमारा यहाँ पे ग्रेट सदर्न एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो उसमें जैसे मैं काम करना स्टार्ट किया। और उसके बाद तो 15 साल हो गए इसी टाउन में है। छोटा टाउन है, जैसे 4000-5000 की पॉपुलेशन है। हिंदुस्तान से और कोई फैमिली यहाँ है नहीं, हम ही हैं। मियाँ बीबी हैं, बिटिया थी वो अब यूएसए चली गई, वो भी साइंटिस्ट है। हाँ, वो डॉक्टरेट कर रही है अभी, वो एनिमल साइंस में कर रही है। तो मैं जैसे क्रॉप साइंसेज में हूँ, और सोल साइंस में कह सकते हो आप, ग्रेन्स में, वो एनिमल साइंस में। जी। हाँ, सो मैं इत्थे सर दर्शकों ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਝਲਕਦਾ ਰਹੂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪਸ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੰਮਾਂ ਚ ਸੋਲ ਤੇ ਕ੍ਰੌਪ ਸੀ। हाँ, तो मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो सोल साइंस, एग्रोनॉमी कह सकते हो, और क्रॉपिंग सिस्टम। कि आप अकेली सोल, जैसे इंडिया में, हिंदुस्तान में देखोगे कि एक आदमी सोल्स में ही काम कर रहा है, ये एक एक्चुअली पूरा पैकेज है। अकेली सोल काम नहीं करेगी, उसके लिए आपको एग्रोनॉमी भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए, ब्रीडिंग भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए। तो लेकिन यह है कि क्योंकि सोल्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है जो प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो और वो मेरी, जैसे मैं सोल साइंटिस्ट हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये कहूंगा कि क्रॉपिंग सिस्टम की जो रिसर्च है उसमें काफी हद तक इन्वॉल्व रहा। हाँ, तो उसमें जैसे क्रॉप रोटेशन है, उसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ये हमारी जो अभी आप पूछेंगे कि स्केल इतना बड़ा है, तो उसको आप मैनेज कैसे करते हो? तो मैं ये आ रहा हूँ, एक सारे मसले डिस्कस करने जरूरी है। हाँ, पर एक आप करते हैं। पहले जब सोल की बात की आपने, हाँ, सोयल मैनेजमेंट में हम इंडिया की अगर बात करें तो हमारा इंडिया में पहला ही सबसे बात ये होती है भी हमारे लोगों ने उसमें इतनी ज्यादा फर्टिलाइजर डाल दिया, उसका खत्म कर दिया सोयल को, उसके रोम्स बंद कर दिए, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे प्रॉपर। यूनिवर्सिटीज के पढ़ाई लिखाई ना होने की वजह से हर लोग यूनिवर्सिटी तक पहुंच नहीं पा रहे। यहाँ पे आप सोल पे काम तो बहुत कर रहे हैं, सोल के बारे में भी हम आपसे पूछेंगे, पर मैं उससे पहले भी ये पूछना चाहता हूँ, क्या किसान, नॉर्मल किसान, बड़े हैं किसान हमारे से, वो आपको या यूनिवर्सिटी को या सोल को टेस्ट में कितना विश्वास रखते? ओके, यहाँ के जो किसान है वो साइंस में बहुत विश्वास करते हैं। पहला तो आपका आंसर है कि साइंस में बहुत बिलीव करते हैं। यहाँ जो प्रोडक्टिविटी है वो साइंस बेस्ड है, और ज्यादातर किसान ग्रेजुएट हैं, तो वो उनकी भी बैकग्राउंड भी साइंस की ही बैकग्राउंड है। और अब रही बात है कि हम और किसान मिलके काम करते हैं, रादर हम किसान के पास जाएंगे, हम उनसे पहले यही पूछते हैं कि आपकी क्या क्या समस्याएं हैं, और जब वो समस्याएं का पता लगता है तब हम अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं।
तो जबकि हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। मैं उस सिस्टम को क्रिटिसाइज तो नहीं करूंगा, लेकिन सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। हमारी जितनी भी सोल क्या चाहिए एग्रोनॉमी कोई भी रिसर्च है, तो हम पहले फार्मर को कंसल्ट करते हैं कि आप ये बताएं कि आपको किन किन चीजों में ये लगता है कि रिसर्च की मतलब या आगे प्रयोग करने की या रिसर्च को क्या कहेंगे वैज्ञानिक तरीके से मतलब क्या क्या हम वो कर सकते हैं। अनुसंधान शायद एक वर्ड होगा, वर्ड है पर हाँ समझ गया। तो हम जो है बहुत फार्मर के कोलाब्रेशन के साथ काम करते हैं, और यही रीजन है कि जब हम कोई काम करते हैं तो फार्मर्स उस पर बिलीव करता है और वो उसको अडॉप्ट करता है। तो अब आप थोड़ा सा ये देखें कि हमारी जो मिट्टी है वो बहुत ही ज्यादा अनप्रोडक्टिव है लिटरली। इंडिया की यदि मिट्टियों को देखें, खासकर अपना हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी, उनसे अच्छी मिट्टी शायद दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन आपने जो क्वेश्चन किया था, बताया था बैकग्राउंड में कि अब वो मिट्टी बिल्कुल मरती जा रही है, उसमें इतने केमिकल्स फर्टिलाइजर डाल के उनको ऐसा बिल्कुल वो एक डेड उसमें। अब मैं पढ़ता हूँ ये, और बड़ा दुख होता है कि इतने बढ़िया मतलब प्रोडक्टिव सिस्टम को हम बिल्कुल एक डिक्लाइनिंग फेज में जा रहा है। तो मुझे नहीं पता कि वहाँ की जो साइंस कम्युनिटी है, यूनिवर्सिटीज हैं, वो इस चीज को कैसे लेंगे, लेकिन वहाँ अब बहुत कुछ करने की जरूरत है। अब हमारी जो मिट्टी है, यदि अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, मैं इसी पूछना चाहता हूँ। हाँ, जैसे भाषा है, लोग बोलते हैं बीच कोस्ट पे भाषा बदल जाती है। हाँ, मिट्टी की भी जितनी कि मेरे को नॉलेज है, अभी उसकी लहर होती है जमीन में, अलग अलग लहरें होती हैं। कोई पट्टी बोलता है उसको, कोई कुछ लहर बोलता है। हाँ, मैं देख रहा हूँ 5 किस्म की तो मिट्टी मेरे सामने पड़ी है। तो मैं ये सारी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के या ऑस्ट्रेलिया, ये एक्चुअली मेरे एरिया की है, सिर्फ मेरे एरिया की है। और मैं आपको ये कह सकता हूं, जैसे आपने 20 किलोमीटर की बात बताई, हमारे यहाँ पे 20 मीटर के ऊपर आपको नई टाइप की सोल मिलती है। 20 मीटर, अच्छा, मैं मीटर की बात कर रहा हूँ, किलोमीटर की नहीं कह रहा। 20 मीटर में ही आपको इतनी मतलब डिफरेंट किस्म की सोल मिल जाए, क्योंकि ये कुदरत की देन है। अपने वहाँ हिंदुस्तान में, हरियाणा, पंजाब में एल्यूवियल सोल्स हैं। मतलब ये है कि जो अपनी जो नदियां आती हैं, उनसे जो मिनरल आते हैं, उनका वो डिपोजिशन होता रहता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो जो भगवान ने, नेचर ने, कुदरत ने जो बनाया है लाखों करोड़ों साल से, ये वही मिट्टी है। और उसके बाद यहाँ पूरे जंगल थे। 100 साल पहले ही ये जंगल काट के दोबारा से मतलब लोगों ने कल्टीवेशन स्टार्ट किया है। तो जो नेचुरल वेरिएशन है वो सोल में बहुत ज्यादा है। और इसीलिए बल्कि कई बार क्या है कि ये आप बुक्स इतनी रखी हुई हैं, जब हम बुक कंसल्ट करते हैं, कोई अमेरिकन बुक है, कोई ईस्टर्न स्टेट की है, वो बुक्स हमारे यहाँ काम नहीं करती। हमारी केमिस्ट्री, सोल की जो केमिस्ट्री है वो बहुत डिफरेंट है। तो हमें अपना एक कहते हैं ना कि हमने अपनी एक जो सोइल को कैसे डील करना है, कैसे उनसे प्रोडक्टिविटी लेनी है, हमने अपना ही सिस्टम डेवलप किया हुआ है और उसी में करते भी जा रहे हैं। क्योंकि इन सोल्स को आप देखोगे, यदि आप किसी हिंदुस्तानी किसान को यहाँ बुला लो, कि हरियाणा, पंजाब के किसान को बुलाओगे आप, और इन सोल मिट्टी की तरफ वो देखेगा तो ये कहेगा इसमें तो एक दाना भी नहीं हो सकता। खुद मेरे पिताजी आए थे और मेरी वाइफ है, उनके भी जैसे पेरेंट्स आए थे, उन्होंने जैसे इन मिट्टियों की तरफ देखा, वो कहते एक दाना नहीं हो सकता। लेकिन मैं गारंटी के साथ रहता हूँ कि इनमें आज भी हम कुछ में तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि अपने वहां 50 मन कनक, एक दो मिट्टी में तो हम 50 का 60 भी लेते हैं। और ऐसी है कि उसमें 30-40 वो डिपेंड करता है, क्योंकि ज्यादातर हमारे यहाँ पानी नहीं है। हमारा सारे के सारे जो सिस्टम है, जो पूरी एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी है, वो बरसात पे है। तो मिट्टी और पानी जब वो दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है, तब हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी आती है। हाँ, मैं यही देख रहा था, क्योंकि हमें जो मिट्टी के सैंपल पड़े हैं। हाँ, तो इनके अलग अलग अपने नाम हैं, इनके नाम हैं और इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। अब जैसे मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ
ये देखो बहुत ज्यादा रेतीली है। हाँ जी। कोई बात नहीं, रेतीली हो सकती है, लेकिन इसकी एक खास बात है। इसकी खास बात ये है कि यदि इस मिट्टी में देखना, आप सरप्राइज होगे, ये मिट्टी है, अब इसमें मैं थोड़ा पानी डालूंगा। देखो ये पानी इसके अंदर नहीं गया, ये पानी इसके चारों तरफ ही घूम रहा है। तो ये इसको बोलते हैं हम वाटर रिपेलेंट, कि जो पानी को दूर भगाए। तो देखो बरसात भी होती है, और लेकिन जो पानी है वो जमीन में नहीं जाता, वैसे भाग जाता है ऊपर से। तो आप सोचोगे, क्या आप सोच सकते हो कि ऐसा होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो ये क्यों है, पहले तो इसका कारण जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे पहले जंगल थे। सफेदा आपने सुना होगा, हिंदुस्तान में भी है, बिल्कुल, हरियाणा पंजाब में दुनिया भर के हैं। आप छोड़ दिए हाँ। तो हरियाणा पंजाब में जैसे सफेदा है, तो यहाँ सारे सफेदे थे। यहाँ सफेदे की बहुत सारी किस्में हैं, उनको हम गम ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो जो गम ट्री है, तो उनसे क्या है, जैसे नाम से आपको पता है कि गम मतलब गोंद। तो ये जो इनकी जो जड़ें हैं, वो जो है वो धीरे धीरे वो जो गोंद है, वो जमीन के साथ लाखों करोड़ों सालों से रिएक्शन होती रही। तो ये सारा एक वैक्स कह सकते हो, गोंद है, जो कि इसके अंदर चला गया हुआ है। तो इसी वजह से ये सोल्स, ये मिट्टी है, ये पानी को हाइड्रोफोबिक भी बोलते हैं, या वाटर रिपेलेंट, जो पानी को दूर भगाए, रिपेलेंसी है। तो ये है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बल्कि एक हमारे अपने साइंटिस्ट हैं, टोहाना से थे वो, अभी भी हैं, डॉक्टर बलबीर सिंह बूटर। ठीक है, तो उन्होंने पीएचडी की थी यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो उन्होंने यही था, उनका प्रोजेक्ट ये था कि इन सोल्स को कैसे, मतलब हम इनको ट्रीट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या था, उनके मेन, जो मैं आपको आउटकम बता दूंगा, क्योंकि इन सोल्स के नीचे फिर दोमट मिट्टी है, करीब 20-30 सेंटीमीटर पे, कि वहां से कुछ दोमट मिट्टी निकाल के इसे मिक्स कर दो, कल्टीवेट कर दो। लेकिन उसमें भी गहरी का भी एक, क्योंकि यदि ज्यादा गहरी जाएंगे तो उसमें सोल्ट बहुत ज्यादा थे। तो वो एक ये कि चाहे तो आर्टिफिशियली कहीं और से हम क्ले लाएं, या फिर वो नीचे वाली क्ले या दोमट मिट्टी अच्छी है तो उसको मिक्स करें। वो भी एक प्रोपोर्शन में। हाँ, तो ये मिट्टी है। अब इसकी ये देखो, दूसरी ये है। अब ये तो बिल्कुल कंकर है, ग्रेवल है ये। हाँ जी। इनमें तो जो मिट्टी है, जिसमें कि जो रेत कह सकते हो, वो तो करीब 30 और 40% है। बिल्कुल। बाकी तो सारा का सारा स्टोन है। तो ये जो सोल्स हैं, ये जो मिट्टी है, लेकिन इसको खास बात यह है कि ऑर्गेनिक मैटर बहुत है। तो मैं इस पे आने से पहले मैं ये पूछना तो इस मिट्टी को जब तक पानी सोख नहीं करने वाली बनती, कुछ हो सकता है इसमें? इसमें होता है। इसमें जैसे क्या है कि अब जैसे बताना कि या तो हम इसमें क्लीन करते हैं इसकी, या फिर जैसे सीड को थोड़ा सा और नीचे करते हैं। तो मान लिया आज बरसात होगी, आज खड़ा रहेगा, धीरे धीरे वो जाएगा। हाँ, तो और दूसरे और एक दो कुछ केमिकल है, वेटिंग एजेंट बोलते हैं, वो कुछ डाल देते हैं। तो वही बताना कि साइंस बहुत इन्वॉल्व है। फिर ही होता है, नहीं होता। हाँ, साइंस है अगर इसमें हमने, जैसे आपने बोला, क्ले मिलाई जाए, जैसे हमारे वहाँ जिप्सम डालते हैं उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए, मान लिया कोई एसिडिक, तो बाद में ये आगे प्रॉब्लम आएगी कि बाद में चल पड़ेगी ये जमीन? नहीं, ये तो बस जैसी कुदरत ने बनाई ऐसे ही रहेगी। लेकिन इसमें धीरे धीरे क्या है कि अब जैसे अभी प्री को 100 साल हो गए, तो अब जैसे हम फसल लेते हैं, तो वो हम एक्चुअली इनको अभी एक आप आगे क्वेश्चन करोगे, करना चाहिए आपको। तो उसमें क्या है कि हम जो अपनी फसल है उसको काट लेते हैं, और फिर हम उनको कल्टीवेट नहीं करते। तो उससे क्या है कि जो आपकी जो जमीन में जो जड़ें हैं पिछले क्रॉप की, या जो भी आपका स्ट्रॉ है, स्टबल्स हैं, वो एज से पड़े रहते हैं, वो उसमें गलते सड़ते जाते हैं। तो वो जो ऑर्गेनिक कार्बन है, ऑर्गेनिक मैटर है, वो धीरे धीरे इनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। वो कनेक्शन बन जाता है। उसमें कुछ एसिड्स हैं। हाँ, लेकिन वो डिपेंड भी ये करता है कि कौन सी क्रॉप है। लेकिन धीरे धीरे अब थिंग्स, मतलब चीजें थोड़ी इंप्रूव हो रही हैं।
लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग सोल जो मैंने आपके सामने रखी है। तो अगली अब ये जो जमीन है आप इसको देखोगे, इसमें तो मतलब 60% तो कंकर ही है, लेकिन इनमें खास बात ये है कि क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा आज भी जंगल हैं, काफी गहरे जंगल थे, तो इनमें ऑर्गेनिक कार्बन बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि इनकी जो न्यूट्रिएंट जो अपने जो न्यूट्रिएंट को क्या बोलेंगे, जो भी है पोषक तत्व, जैसे वो उनको होल्ड करने की थोड़ी सी कैपेसिटी अच्छी है। तो ये इनकी एक खास बात यही है। हालांकि मतलब जब आप 60% है तो 60% तो इनर्ट मटेरियल है, पत्थर हम मतलब प्लांट की रूट तो जाएंगे नहीं, लेकिन क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा है तो वो कंपनसेट लेता है, जाएगी। सेकेंडली क्या है कि इस एरिया में बरसात अच्छी होती है, तो बरसात की वजह से ये काफी, हम इनको प्रोडक्टिव सोल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना, इन सोल्स में हम करीब करीब 50 महीने गेहूं ले लेते हैं, कणक की खेती। हाँ, कणक की खेती 50 महीने हो जाते हैं इसमें। तो इसमें बिना पानी के, हाँ बिना पानी के, सब कुदरत का वो है पानी। और इसमें एक थोड़ी सी खास बात क्या है कि इसमें क्योंकि एसिडिक सोल्स हैं, आयरन और एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा है, तो फास्फोरस जब हम इसमें डालते हैं तो बाइंड हो जाता है। तो इसलिए फास्फोरस के लिए हमें स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है इन सोल्स को ट्रीट कैसे किया जाए। तो तीसरे नंबर के लिए सोल देखोगे, ये आपको कुछ कुछ इंडिया जैसी लगेगी। हाँ, ये इसमें दोमट मिट्टी काफी है, दोमट मिट्टी है इसमें, हाँ चिकनी मिट्टी जिसे कहते हैं। तो ये क्या है कि जब आपकी नॉर्मल बरसात हो जाए तो ये बहुत अच्छी सोल है, लेकिन यदि बरसात कम हो जाए तो बहुत ज्यादा करड़ी हो जाती है, और वो इतनी करड़ी हो जाती है कि जो अपनी जड़ है पौधे की ब्लॉक है। हाँ, तो ये एक अच्छे सीजन में, अच्छे सीजन का मतलब है कि बरसात यदि ठीक ठाक होती जा रही है तो ये बहुत अच्छी है। यदि बरसात बहुत ज्यादा होगी तो तब भी खराब है, क्योंकि वो इतनी स्टिकी हो जाती है। फिर एक और समस्या क्या है कि फिर मशीनरी खेत में नहीं जा सकती, वो मतलब कहते हैं धस जाती है, कलर। हाँ बोलते हैं। तो यहाँ पे फिर आपको एरियल वो करने पड़ते हैं, मान लिया स्प्रे भी हैं, फर्टिलाइजेशन जो कुछ, फिर इसमें तो अपने इंडिया जैसे कहते हैं ना कि यहाँ हेलीकॉप्टरों से करते हैं, तो ज्यादातर इन सोल्स के लिए करते हैं, क्योंकि आप जब ट्रैक्टर अंदर जा नहीं सकता, लेकिन आपको दवाई तो करनी है, आपको फर्टिलाइजर तो करना ही है। वैसे प्रोडक्शन में ये मिट्टी अच्छी है, प्रोडक्शन में मिट्टी अच्छी है, प्रोडक्शन में अच्छी है, लेकिन अच्छी जब आपकी बरसात अच्छी हो तभी है, बैलेंस में हो। हाँ, ये अगली मिट्टी है, लाल है, देखो इसको देख करके ना पंजाबी का मन है, इसमें तो आदमी उठ पड़े। हाँ, लेकिन इसकी भी अपनी कुछ समस्याएं हैं, ये आपको लगती बहुत अच्छी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये देखने में और जब आप इनको डील करते हो उगाने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये जो मिट्टी है ये बहुत अच्छी मानी जाती है वैसे, खासकर यदि आप दलहनी फसल उगा रहे हो तो उसके लिए तो इनका टेक्सचर बड़ा अच्छा है, लेकिन इनके साथ समस्या क्या है कि ये दलदल हो जाती है इनमें। जैसे ही बरसात थोड़ी सी ज्यादा होगी ये ऐसे मतलब श्रिंक हो जाएंगी, और आप कई बार देखोगे कि आपका ट्रैक्टर आपने आइडल उस पे छोड़ दिया, 1 घंटे के बाद देखो वो धस जाएगा। हाँ, लेकिन दलहनी फसलों के लिए ये काफी अच्छी है। हाँ, इनकी जो दालें हैं, हाँ पीएच है वो ठीक है, मतलब पीएच मतलब जो ये अल्कलाइन सी रेंज में है। हाँ, बाकी वो सारी एसिडिक रेंज में है, जिनका पीएच जैसे 5.4 5.5। और ये देखो ये बड़ी अच्छी सोइल, यदि आप इन 4-5 मुझे कहोगे कि जी कौन सी अच्छी सोइल है, मैं ये कहूंगा, आप देखो एक तो कलर में ये बहुत डार्क है, तो डार्क का मतलब ये है कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर काफी है, और सेकेंडली ये थोड़ी सी इसमें दोमट मिट्टी भी है। तो ये एक ऐसी सोइल है जिसको कि आप ये कह सकते हो कि भाई मेरी जो सोइल है बहुत अच्छी है। तो जब यहाँ पे जमीन के जो भाव होते हैं ना, आप कई बार हिंदुस्तान में जब जाता हूँ या वहां से लोग पूछते हैं कि वहां जमीन के क्या भाव हैं, देखो आप ये कॉमन क्वेश्चन है। तो ये जैसे मैंने 5 किस्म की मिट्टी दिखाई ना, इनमें जो भाव है इनके ऊपर बहुत ज्यादा तय होता है। हाँ, कौन सी मिट्टी है, कौन सी मिट्टी है। आज मैंने ये मिट्टी देखी रास्ते में, हाँ, तो मैंने बोला ये फाजिलका हबोर की मिट्टी है उस एरिया में ऐसी मिट्टी है। हाँ, तो ये मतलब आपका जो नियरली जो 40% जो आपकी जो वो है ना, सॉरी 30% आप ये कह सकते हैं कि जो लैंड की वैल्यू है वो मिट्टी के ऊपर है।
दूसरी जो और वैल्यू होगी वो ये होगी कि आप उस पे उगाया क्या है पिछले 10-15 साल से। वो भी रोटेशन। हाँ, रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गेहूं 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 उगाते जा रहे हैं। जैसे हरियाणा पंजाब में जो है 3 चीज ही है मेरे ख्याल से, एक तो गेहूं है, फिर ये जो अपना पेडी राइस है, या फिर आपकी साइड में नरमा है, कपास है। तो उससे क्या कि सिस्टम बहुत ज्यादा फ्रेजाइल हो जाता है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, फर्टिलिटी है, काफी हद तक ड्रेन हो जाती है। तो यहाँ जो रोटेशन है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और तीसरा यह कि फिर आपको मतलब एक पानी कितना है, बरसात कितनी होती है। तो ये 3 चीजें हैं जो कि आपको मतलब जब जमीन लेते हो या कोई मोल तोल होता है जमीन का, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है।